between the conventional and non-conventional energy sources. Then what are the different types of power plants that we had seen? Okay, and in last lecture we had covered about the thermal power plant. Okay, so here just I will revise the things. Energy is nothing but the capacity to do the work. Okay, and we have the different forms of the energy: electrical energy, sound energy, potential energy, kinetic energy. Okay, like this. And the unit of energy, the SI unit of energy is a joule, and the simplification of joule is nothing but 1 joule is equal to 1 kg meter square per second square. This one, 1 joule is equal to 1 kg meter square per second square. That is the simplification of 1 joule. Next, power. Now power is what? It is the rate at which the energy is transferred. It means it is the rate at which work is doing. मतलब वर्क करने के लिए आपको जो टाइम लगता है उसको हम पावर बोलते हैं. Then unit of power is watt. Okay. And next, we have seen the different types of energy sources: conventional and non-conventional energy sources. Okay, so non-conventionals are coming from the natural resources like solar, wind, then hydropower, geothermal, SN and ocean and biomass. Then non-renewable conventional sources, this one, these are comes which from the some human or man-made resources. Okay, so like the coal, petrol, diesel, kerosene, LPG, CNG. Okay, so these are the non-renewable energy sources. So this is the energy sources. Then here we have seen the some difference of energy sources. Then here we had seen the types of power plants. Thermal power plant, it is also called as a steam power plant. Okay, all of you just remember this one, huh? Thermal power plant is also called as the steam power plant. Okay, if in assignments I ask about this, explain the steam power plant, so you don't get confused, because we are seeing the thermal power plant. So thermal power plant and steam power plant both are the same. Now hydroelectric power plant, nuclear power plant. So these two power plants we are covered: thermal power plant and nuclear power plant. Okay. Then solar wind hybrid power plant, then geothermal power plant, gas turbine power plants, and diesel power plant. So these are the different types of the power plants we have. Now in thermal power plant we are seeing the working of thermal power plant. Okay, so इसमें हमने थर्मल पावर प्लांट का जो ये था वर्किंग, ये हमने यहाँ पे देखा था. So in the thermal power plant, generally what we are doing, we are generally burning the coal और द फ्यूल इन द फर्नेस. ये जो फर्नेस रहेगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं. और फ्यूल को बर्न करने के बाद हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे, फ्लू गैसेस. यहाँ पे हम मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे फ्लू गैसेस, हॉट फ्लू गैसेस. इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा. उसके बाद ये जो है इस सेक्शन को हम बोलते हैं बॉयलर. हियर इट इज द बॉयलर. ओके, बॉयलर में हमें 3 सेक्शंस मिलते हैं. एक आएगा आपका इकोनोमाइजर, दूसरा आएगा आपका बॉयलर ड्रम, तीसरा जो है आएगा आपका सुपर हीटर. अभी इन तीनों का फंक्शन मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में बोला था. ओके, सो ये आएगा बॉयलर. यहाँ पे हम कोल जो है या फिर जो कोई फ्यूल रहेगा वो हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे. बर्न करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे फ्लू गैसेस. वो हॉट फ्लू गैसेस क्या करेंगे, आपके यहाँ से जो वाटर आता है, दिस इज द वाटर, ये पंप रहेगा आपका. ये पंप पंप क्या करेगा, वाटर का प्रेशर बढ़ाएगा. यहाँ से जो कोल्ड वाटर आता है इसको हम फीड वाटर बोलते हैं. ये फीड वाटर कहाँ पे जाएगा आपका बॉयलर में, पहले तो ये इकोनोमाइजर सेक्शन में जाएगा वाटर. फर्स्टली इट एंटर्स द इकोनोमाइजर सेक्शन. इकोनोमाइजर सेक्शन में ये जो है ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा. ये जो वाटर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वार्म, मतलब थोड़ा सा हीट हो जाएगा. देन ये इसको हम कहाँ पास करेंगे, बॉयलर ड्रम में. बॉयलर ड्रम में ये जो वाटर है, वाटर क्या हो जाता है यहाँ पे, स्टोर हो जाता है. स्टोर होने के बाद यहाँ से फिर फ्लू गैसेस जो है ये क्या करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे. सो हीट सप्लाई करने के बाद ये अगेन हीटेड अप होगा, यहाँ से स्टीम जनरेट होगी. ये जो स्टीम है वो फिर बाद में सुपर हीटर में जाएगी. सुपर हीटर जो है स्टीम को सुपर हीट करेगा. देन ये जो सुपर हीटेड स्टीम है ये हम कहाँ पे पास करेंगे, टरबाइन में पास करेंगे. टरबाइन में ये जो स्टीम है इसका एक्सपेंशन होगा, इस स्टीम का एक्सपेंशन होगा. एंड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इट exert the pressure on the blades of the turbines. Okay, so that's why the shaft of turbine is get rotating. ये जो shaft रहेगा, ये shaft क्या हो जाएगा आपका, टरबाइन का रोटेट हो जाएगा. So due to this rotation, it means we are getting the steam power. Okay, we are converting the steam power into what, mechanical power. Mechanical power means the sense shaft power. So that shaft, rotating shaft is coupled. This is the coupling. It means attaching. So this is coupled with the generator shaft.
A generator, this is the generator. Generator will produce the electricity. Here you will get the electricity. So whatever with the steam expanding, superheated steam expanding in this turbine, due to the expansion, it get converted into what? Low pressure steam. Due to the expansion, it get converted into low pressure steam. So ये जो low pressure steam है, this is the steam, steam. ये जो low pressure steam है, ये कहाँ पे जाएगी आपकी condenser में. It goes in the condenser. Now in condenser we are cooling that steam. यहाँ पे हम condenser में उस steam को क्या करेंगे? Cool करेंगे. Cool करने के बाद इस steam का conversion जो है liquid form में हो जाएगा. This steam get converted into what? Liquid form. So ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड हम अगेन कहाँ पे पास करेंगे? फीड पंप को. दिस इज द फीड पंप, बॉयलर फीड पंप. So again feed pump will pass this liquid condensate to the boiler. So this cycle will get continued. So this is the working of your thermal power plant. Okay, is it clear? That already we had seen in the previous lecture. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay. Yes, sir. Now, okay, we had seen the types of the boiler. First one is the water tube boiler and second one is the fire tube boiler. Okay, water tube boiler और fire tube boiler हमने ये दोनों भी देखे हैं. Water tube boiler में क्या होता है? Yes, what happens in the water tube boiler? ट्यूब्स में पानी होता है और उसके अराउंड फायर होती है टू हीट इट. Yes, yeah, absolutely correct. Here you can see blue color. These are the tubes. In these tubes we are passing the water. In tubes हम क्या कर रहे हैं? Water pass कर रहे हैं and all these water or tubes is get surrounded by what? Hot flue gases. ये जो सब tubes है ये hot flue gases से surround किए जाते हैं. These are the hot flue gases. So these flue gases will heat the water and we get the steam as a outlet. हमें यहाँ पे steam मिलेगी. ये हो गया आपका water tube boiler. And fire tube boiler, yes, what is the fire tube boiler? Two gases passes through the Tubes tube. में but the flue water gases is होती है around और उसके आसपास water होता है. Yeah, here we fill the boiler drum. जो boiler drum रहेगा वो हम किससे fill करेंगे? water से fill करेंगे. और जो tubes है, tubes, इन tube में से हम क्या करेंगे? hot gases pass करेंगे. So ये जो tubes है ये hot gases जो है इन tubes में से pass हो रहे हैं, इसकी वजह से ये जो tube जो है वो heat हो जाएंगी और ये water को भी क्या करेंगी? heat करेंगी. Okay, now just tell me which one is the efficient, water tube or fire tube? वाटर water ट्यूब. tube. Water Fire tube. tube. Fire tube. Water tube. Water tube. Water. Is Water it tube. water or fire? Water It tube. is Water. water tube boiler. Water. Yes, because Water water tube. yes, it is water tube boiler, not the fire tube boiler. Why the water tube boiler? Because the fire- amount of water, yes, the amount of water in a tubes is less as compared to the flue gases. Flue gases के amount ज्यादा रहेंगी और ट्यूब में से वाटर पास हो रहा है, इसका मतलब ट्यूब्स में वाटर जो है उसका अमाउंट कम रहेगी. So easily the hot flue gases will heated up the water. Okay, so it takes less time as compared to the fire tube boiler. और fire tube में क्या रहेंगे कि ट्यूब में से hot flue gases पास हो रहे हैं और उसको सराउंड करने वाला वाटर जो है वो ज्यादा है. So उस वाटर को हीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए fire tube boilers are generally preferred in the industries. Okay, now we have covered the nuclear power plant. Okay, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे देखा था. ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेम वर्किंग रहेगा आपका. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोल की बजाय यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोल के बजाय आपका क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूल. यस, Radioactive materials. Yeah, that is radioactive elements. yes, here we are using the uranium 235 radioactive element as a fuel. अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको वर्किंग जो है, इस वर्किंग में आपने बोला कि ये जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, दिस वन इज द व्हाट योर न्यूक्लियर रिएक्टर. ये रहेगा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर. इस रिएक्टर में 3 टाइप्स के रॉड रहते हैं. ओके, इन दिस रिएक्टर you have a 3 type of the rod. One is the moderator, then fuel rod and the control rod. Now fuel rod, this fuel rod is made of what? This fuel rod is made of what? This is the fuel rod. Fuel rod, it is uranium. Okay, then next is the moderator rod. Moderator rod का function क्या है? Yes, what is the function of moderator rods? reduces the speed of neutrons. Reduce the Speed of neutrons, like it speed of- controls the chain reaction.
Okay, moderator rods will reduce the speed of neutrons. जो न्यूट्रॉन्स आपके फ्यूल रॉड पे बम्बार्ड होने वाले हैं, ओके, जो न्यूट्रॉन्स आपके फ्यूल रॉड पे बम्बार्ड होने वाले हैं, उनका स्पीड काम करने का काम कौन करता है? मॉडरेटर रॉड्स. ओके, सर आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है आपका. लो. ओके, अभी आ रहा है क्या? Yes, अभी आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It's fine. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जो मॉडरेटर रॉड्स रहते हैं वो क्या करेंगे? आपके न्यूट्रॉन का स्पीड कम करेंगे. Now, sorry, these moderator rods are generally made up of what? जो मॉडरेटर रॉड है ये किससे बनाए जाते हैं? Graphite ग्राफाइट water or heavy water. Yes, it is generally made up of the graphite or the heavy water. And जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, this is the control rod. ये क्या रहेंगे आपके? Control rod. Now these control rods are made up by what? बोरॉन और कैडमियम. Control rod किसके? It is made up of the boron or the cadmium. What is the function of control rod? Heating कंट्रोल्स of द the fuel चेन. atoms. Control करता है. Okay, it controls the chain reaction. It means it absorbs the neutrons. ये क्या करेगा? न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल रॉड करेगा. सो ऑल दीज रॉड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली. ये सब रॉड्स के क्या किए जाते हैं? अल्टरनेटली अरेंज किए जाते हैं. अभी देखिए कि यहाँ पे जो हम यूरेनियम बर्न कर रहे हैं, न्यूट्रॉन का जब इन पे बम्बार्डिंग होता है तो यहाँ से क्या होती है? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है. सो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी हम क्या करते हैं? आपका यहाँ पे कूलेंट रहेगा. ओके, दैट कूलेंट इज व्हाट? CO2, either helium or liquid metals like your sodium or potassium. ये जो है, here you can see, ये जो कूलेंट्स हैं, इन कूलेंट्स को हीट करने के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस. इनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है. सो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये क्या होते हैं? जनरली हीटेड अप हो जाते हैं. अभी ये जो कूलेंट है ये हम कहाँ पे पास कर रहे हैं? हीट एक्सचेंजर में पास कर रहे हैं. ये कहाँ पे पास कर रहे हैं हम? हीट एक्सचेंजर में. सो दिस हीट एक्सचेंजर में वो क्या हो जाएंगे? आपके वाटर को हीट करेंगे. वो उनकी जो हीट है वो एक्सचेंज करेंगे वाटर को, और वाटर का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? स्टीम में. एंड अगेन दिस स्टीम टर्बाइन विल गेट रन. नाउ द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ योर thermal power plant. Okay, so here we are using only the nuclear fuel instead of the coal in a thermal power plant. Okay, is it clear? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next Yes, sir. we will move towards the hydroelectric power plant. Okay, so next we will move towards the hydroelectric power plant. Now can anybody tell me the what is meant by the hydroelectric power plant? Electricity is generated by the use of water. वाटर. Okay, By here kinetic we are heat. using the here we are using the fuel as a water. Now how the energy get transferred from the water energy is transferred from water to the electricity? Yes, With the help of flow of can anybody water. tell me? Pressure of water is used to rotate the turbine. Yeah, generally let's see, I think all of you have seen the dams. आप सबने dams देखे होंगे. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. yes, अगर आप डैम देखेंगे तो आपको ये नोटिस होगा कि जो डैम्स है वो जनरली इलेवेशंस पे होते हैं. व्हाट इज मीन बाय द इलेवेशन? हाइट पे होते हैं. On certain height. Yeah, yes, they are placed in a certain height. Okay, so why they are at elevation? For the maximum So that kinetic they energy will of the contain water. potential energy. Yeah, let's see, we have the two type of the energy. One is the what? Potential energy, and another is the kinetic energy. Now any particle or any object which is at a some certain height from the ground, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपके ग्राउंड से किसी भी सर्टेन हाइट पे होता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी. सो जितनी हाइट ज्यादा रहती है उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती है. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? M into MGH. 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 MGH.
Yes, it is mgh. It is nothing but the weight. Mg means the weight into height. Height from the what? Ground. So ground से जितनी height ज्यादा रहेगी उतनी potential energy क्या रहेगी उसमें ज्यादा रहेगी. So now let's see that potential energy we are converting into the kinetic energy, and that water we are passing through the tubes. So due to that high kinetic energy, that water will strike on the turbine blades. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्या है आपके टर्बाइंस है. These are the water turbines. So इन टर्बाइन के ब्लेड्स पे क्या होता है वो वाटर स्ट्राइक हो जाता है और उस टर्बाइन के ब्लेड्स को क्या करता है वो वाटर रोटेट करता है. सो वो जो टर्बाइन के ब्लेड्स है वो अगेन शाफ्ट को जनरेट किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, सॉरी, वो जो ब्लेड्स हैं वो शाफ्ट को कनेक्ट किए जाते हैं एंड दैट शाफ्ट इज अगेन कनेक्टेड टू द जनरेटर एंड दैट जनरेटर विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. Turbine not producing the electricity, we are connecting the rotating turbine to the generator and that the generator will produce the electricity. Okay, just keep remember this. Turbine will not produce the electricity. Turbine will just convert the what? Fluid power into the mechanical power. Okay, that is the main purpose of the turbine. It converts the fluid power into the mechanical power. So this is the generally layout of your hydroelectric turbine, hydroelectric power plant. Here we have the dam. In a dam we are storing the water. Then this is the long tubes. These are the pipes. Generally that pipes are called as the penstock. ये जो pipes रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? Penstocks. Okay. Then turbine. Then turbine के नीचे ड्राफ्ट ट्यूब रहती है. अब ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ. टर्बाइन के नीचे रहेगा ड्राफ्ट ट्यूब. Okay, now this is the tail race. Tail race means, yes, anybody knows this one? Tail race. Yes. कोई बता सकता है? Tail race is nothing but what? That is the releasing water area. Released water area. आपके जो डैम यस हेड रेस. हेड रेस पता है क्या? This is the elevated height. This one is the elevated height. This is the head race. Maximum level of water from the ground. This is the head race. Maximum level of the water from the ground. That is the head race. And this is the tail race. Okay. Now let's see the hydroelectric power plant. Now what is the working principle? That I had already told you the working principle. In this hydroelectric power plant, what we are doing, we are storing the water behind the dam. So that stored water has the what? High potential energy. This water has the high potential energy. So we are just releasing this water through these tubes. We are releasing this water through these tubes. So these tubes are called as the penstock. So this potential energy is get converted into what? Kinetic energy. So that high speed and high pressure water we are just striking on the blades of the turbines, water turbines. यहाँ पे आपको blades दिखाई देंगे. इन blades के ऊपर हम क्या करते हैं, इनको strike करते हैं. So that blades is get rotating. So that blades are connected to the shaft. And that shaft is also start to rotating. So this shaft of turbine is get connected to the generator and generator will start to produce to the इलेक्ट्रिसिटी. सो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा एंड यहाँ से टर्बाइन से वाटर क्या हो जाएगा आपका टेल रेस में रिलीज किया जाएगा एंड दैट वाटर वी आर जस्ट स्प्रेडिंग टू द कॅनल्स. ओके, चला आपण मराठीमध्ये कालवा म्हणतो. ओके, सो that water is we are just spreading to the canals and through that canals we are supplying that water to the different uses, either it is for industrial use or either it is for the domestic use or for pharmaceutical use, sorry, for your agricultural use. Okay, so this is the working principle of your hydroelectric power plant. I think this working principle is clear to you. Yes. Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, well, Yes, sir. principle is just simple. Potential energy of water is converted into the kinetic energy, and at high pressure, high velocity, water will strike on the blades of the turbines, and that turbines will get start to rotate, and that turbines are get connected to the generator, and that generator will produce the electricity. So that is the working principle of your hydroelectric power plant. Okay, so here you can see this is the हेडरेस्ट. मैंने आपको बोला था वाटर जो है आपके वाटर की जो हाईएस्ट लेवल रहेगी, ओके, वाटर की जो आपके हाईएस्ट लेवल रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, हेडरेस्ट. सो दिस इज व्हाट योर हेडरेस्ट. नाउ लेट्स सी दिस एरिया इज कॉल्ड एज द डैम. ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्स. नाउ आप सबने डैम्स देखे होंगे. ओके, अब अगर आपने किसी ने डैम देखे होंगे तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो डैम्स का विड्थ रहता है, बेस पे जो विड्थ रहता है वो ज्यादा रहता है. लेट्स सी दिस लेंथ. ओके, व्हिच वन? हियर लेट्स सी दिस लेंथ, ये ज्यादा रहती है. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं, वैसे वैसे ये जो विड्थ है वो विड्थ कम होती जाती है. ऐसा क्यों? Due to Yes. pressure different. Due to gravitational acceleration. Okay, let's see जो वाटर what प्रेशर है वो actually नीचे जाता है. यस, वाटर प्रेशर जो रहेगा आपका, वाटर प्रेशर ये आपका बेसमेंट में ज्यादा रहेगा, क्योंकि लेट्स सी नीचे जो वाटर का लेयर है आपका, यहाँ पे आपके वाटर का लेयर रहेगा. ओके, ये डिफरेंट लेयर रहेंगे. सो ये जो नीचे नीचे लेयर्स रहते हैं इनके ऊपर क्या होता है कि ऊपर वाले लेयर्स का प्रेशर आ जाता है. इज इट? नीचे वाले जो लेयर्स रहेंगे उनके ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले लेयर्स का क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा. सो उस प्रेशर की वजह से so due to that pressure we have to keep this base width is more. ये प्रेशर सस्टेन करने के लिए यहाँ पे जो बेस में जो विड्थ रहती है वो विड्थ क्या रहती है, ज्यादा रहती है. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, it is. Yes, sir. Now let's Sir. okay, so this is the penstock. ये जो है क्या है आपका penstock. So these are the long pipes. These are the long pipes. Now these pipes made up by the different layers. Okay, now this symbol, what this symbol represents? This one. Yes, ये जो symbol है आपका, this one, what this symbol represents? Coupling. No. Generally we are using these symbols to show that the length of the system is more, and I can't represent the actual length in this diagram. So here I had cutted that portion. So इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है. हम ग्राफ में भी यूज करते हैं ना, स्केलिंग अगर आप करते हैं तो देखिए ये ऐसा आप ग्राफ में करते हैं. आप जब ग्राफ यूज करते हो तो Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस, ओके, ये ऐसा आपके ग्राफ में आता है. मतलब ये जो बीच वाला सेक्शन है इसकी जो डिफरेंस है, डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा है, वो मैं यहाँ पे क्या कर नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया है. ओके, सो दैट इज द सेम हियर. So this is the symbol that represent the length of penstock is more. I can't represent the same length in this diagram. So here I have used the section. इसका section दिया है. Okay, now let's see. This penstock has the nozzles. ये आपको nozzles दिखाई देंगे. Nozzles पता है आपको? Yes, nozzles. Yes, sir. Yes, sir. Okay, क्यों use करते हैं nozzles? Nozzles क्यों use करते हैं पता है? It reduces the area, sir, therefore pressure of the water increases. Increases the pressure. Yes, generally the main purpose of nozzle is to increase the velocity. Okay, generally Yes, the sir. purpose of nozzle to increase the velocity. आपके घर में भी रहता है nozzle, पता है क्या? Yes, Your Yes, daily sir. to daily Yes, sir. life. Yes. sir. For example, taps. Taps. Tap. Yes, Okay. sir. Taps. Sir. okay, then Power. just to take a simple example. No, simple Sir, example. you Shower is not the modulate- nozzle.
इलेक्ट्रिक मोटर We से squeeze the Simple we example. squeeze the head of pipe to squeeze the head of pipe to increase the speed of the water. Squeezing the pipe. Okay. Next. और इलेक्ट्रिक आपके घर मोटर में जो से इलेक्ट्रिक मोटर, Gas burner. इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे स्प्रे आप सब यूज करते होंगे, परफ्यूम, Yes, sir. या सो हाँ सर परफ्यूम के परफ्यूम के जो आउटलेट का आपको जो बटन रहता है, दैट इज द नोजल, स्प्रे, दैट इज द नोजल। देन आप ये भी यूज करते रहेंगे, अभी सैनिटाइजर यूज करते हैं आप। ओके, सैनिटाइजर में आपने वो बोतल देखी होगी, वो बोतल में हम क्या करते हैं, जब उस हैंडल को, लीवर को प्रेस करते हैं तो सामने से आगे से क्या आ जाता है, आपका सैनिटाइजर आ जाता है जब हम स्प्रे करते हैं। ओके, दैट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द नोजल। आया समझ में अभी नोजल? यस सर Yes, sir. या सो दैट इज द नोजल। ओके, आप जो एग्जांपल दे रहे हो दैट इज एप्रिशिएबल, बट व्हाट आई एक्सपेक्टेड कि देखिए, मैंने पहले आपको पहले भी बोला था लेक्चर में कि यहाँ से जो बच्चे आते हैं ना, तो बहुत से बच्चे, कुछ रूरल एरिया से भी है, कुछ अर्बन एरिया से भी है। ओके, सो अगर अगर आप एग्जांपल दोगे ना, तो जस्ट ट्राई टू गिव द वेरी सिंपल एंड सिंपल एग्जांपल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल्स। और कुछ कुछ तो एग्जांपल्स ऐसे भी रहेंगे कि वो मुझे भी शायद समझ में नहीं आएंगे। ओके, सो अगर आप एग्जांपल दोगे ना, तो जस्ट ट्राई टू गिव द वेरी सिंपलेस्ट सिंपल एग्जांपल, एंड दैट इज द व्हाट वी कैन से, हमारी जो खूबी है इंजीनियर्स की, वो हमारी खूबी रहती है कि कम से कम और ज्यादा से सिंपल लैंग्वेज में आगे को कैसे हम डिलीवर करें। ओके, सो ओके, व्हाट आर द एग्जांपल यू आर गिवन, दैट इज ओके। नाउ नेक्स्ट, लेट्स सी। सो हियर nozzle. So here the nozzle increase the speed of the the water. Now let's see, these are the blades of the turbines. ये जो आपके turbines है, इनके ये क्या है, ये blades है। So इन blades के ऊपर क्या हो जाएगा, इसको हम vanes भी बोलते हैं। These blades are also called as the vanes. So इन blades के ऊपर क्या हो जाएगा, ये water strike हो जाएगा। So due to that, ये जो wheels है, और सॉरी ये जो vanes है, ये क्या हो जाएंगे, रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से ऊपर। ये जो है, देन ये जो ब्लेड्स है, ये हमने किस पे कनेक्ट किए हैं, आपके व्हील पे। ये जो व्हील रहेगा, इस व्हील के ऊपर हमने क्या किया है, कनेक्ट किए हैं। सो ये व्हील रोटेट होना शुरू कर देगा। देन दिस व्हील इज अटैच्ड टू द शाफ्ट, ये शाफ्ट को रोटेट करना शुरू कर देगा। ओके, एंड उसके बाद ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट हमने किसको कपल किया, जनरेटर को। नाउ लेट्स सी, दिस इज द वाटर कमिंग फ्रॉम दिस टर्बाइन। सो ये जो आपके है टेल रेस लेवल, ये मैंने आपको बताया टेल रेस लेवल, और ये रहेगी आपकी हेड रेस लेवल, maximum height, headdress, and this is the tail arrest. And let's see, whatever be the difference, or the whatever be the elevation we got between the headdress and tail race, that is called as the gross head. इसको हम क्या बोलते हैं, gross head। समझ में आया? difference between the tail race, ये आपके tail race level है, this is the tail race level, and this is what head race level, ये आएगा आपकी हेड लेवल। सो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ये आएगा आपका ग्रॉस हेड। नाउ यहाँ पे सम कुछ लॉसेस भी रहेंगे आपके, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल लॉसेस। पेन स्टॉक यूज किया है, पेन स्टॉक यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली वाटर के लेयर्स में और पेन स्टॉक के ट्यूब्स में फ्रिक्शन रहेगा। इज इट? यस, यस सर। so due to that friction, the water will lose some energy, that due to that friction water lose some energy, and so that energy we are just converting to the head, so that's why it is called as the frictional head or friction head। and जो बाद में रहेगा वो आएगा आपका नेट हेड। नेट हेड मतलब हेड रेस माइनस टेल रेस माइनस फ्रिक्शन हेड, so that is you get the net head। okay, so this is the हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये तो आप सबने अभी मैंने आपको बता दिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और हाउ इट वर्क्स। देन वाटर रिजर्वायर, ये आप सबको पता है, अभी मैंने आपको बता दिया। डैम्स, ओके, द पर्पस ऑफ इस डैम इज व्हाट, इज टू स्टोर द वाटर। डैम का पर्पस क्या है, जनरली टू स्टोर द वाटर। ओके, देन इट आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द हेड ऑफ द वाटर। डैम की वजह से हम वाटर का हेड भी इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट, सर्ज टाइम।
ओके, दिस वन इज द सर्ज टैंक। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक। अभी जो सर्ज टैंक है, ये सर्ज टैंक हम क्या करते हैं? पेनस्टॉक और टरबाइन के बीच में यूज करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे, लेट्स सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सर्ज टैंक। वी कैन कॉल दिस एज अ सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का यूज बता सकता है कोई? व्हाई द सर्ज टैंक का यूज? यस। सडन फ्लो है तो वो उधर वाटर को डायरेक्ट कर सकते हैं। Yeah, absolutely. Sudden Nice, change good. in pressure. Yeah, good. तो excessive लिक्विड फ्लो water मेजर काम कर करे सकते तो हैं सर। उसको Yes. अगर आपका एक्सेस वाटर आया, लिक्विड एक्सेस फ्लो वाटर आने की वजह से क्या हो सकता है कि आपके पेन स्टॉक में वाटर हैमरिंग इफेक्ट आ सकता है। वाटर हैमरिंग इफेक्ट पता है आपको? यस, वाटर हैमरिंग इफेक्ट। इट्स नेम इंडिकेटेड सेल्फ इट्स मीनिंग, वाटर हैमर इफेक्ट। when water flows with excessive pressure. ओके, ओके, जनरली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने कभी कभी एक छोटा सा टैंक लिया होगा जिसमें आपने वाटर फिलअप किया है। ओके, कंसीडर कीजिए आप, आपके घर में कोई भी टैंक होगा, आइदर प्लास्टिक का टैंक होगा या फिर कोई स्टील का टैंक होगा, वॉट एवर इट में भी, आपके पास जो भी है। या फिर आप जब पिकनिक के लिए जाते हो तो आप अपने साथ क्या लेके जाते हो? वाटर कंटेनर लेके जाते हो। अगर उसमें आपने फुल वाटर नहीं भरा, उसमें अगर आपने फुल वाटर नहीं भरा, थोड़ा सा गैप रख दिया, तो आप जब चलते हो उसको हाथ में लेके, तो ड्यू टू द यूर मोशन, ड्यू टू योर मोशन, दैट वाटर इज ऑल्सो ट्राइज टू मूव और फ्लो इनसाइड दैट कंटेनर, इज इट? वो उस कंटेनर में Yes, वाटर sir. क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। सो कभी कभार आपको उसमें एक डिफरेंट आवाज भी सुनाई देती होगी, टप टक टक करके। मतलब वो जो वाटर रहता है, वो वाटर क्या होता है, आपके सरफेसेस पे क्या हो जाता है? स्ट्राइक होता है, इज इट? Yes, यस। Yes, sir. sir. यस Yes, sir. हाँ, सो वाटर क्या होता है, उस सरफेसेस पे अंदर अंदर ही अंदर स्ट्राइक होने लगता है। सो उसकी वजह से जो इफेक्ट अंदर क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर हैमरिंग इफेक्ट। इट मींस द वाटर इम्पैक्टिंग, अप्लाइंग द इम्पैक्ट फोर्स ऑन द surface. It is called as a water hammering effect. So to avoid that water hammering effect, we are using this surge tank. यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, सडन एक्सेस फ्लो अगर वाटर आ गया आपका, तो आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे वाटर हैमरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। सो उसकी वजह से जो पेन स्टॉक के पाइप है वो बस्ट होने के चांसेस रहते हैं। सो टू अवॉइड दैट इंसिडेंट, वी आर यूजिंग व्हाट? सर्ज टैंक। अभी समझ में आया सर्ज टैंक यूज करते हैं? Yes, sir. यस सर। Yeah. Okay, so just move next. Okay, surge tank is a small reservoir or tank in which the water level rises or fall due to the sudden changes in the pressure. Okay, then next purpose of surge tank, okay, वो तो मैंने आपको बता दिया। water hammering effect भी मैंने आपको बता दिया, what is meant by the water hammering effect. Then penstock. Now let's see the penstock. Okay, so the main thing in the penstock is that it is made up by the two layers. Generally जो penstock है, ये penstock क्या रहता है आपका? दो लेयर से बना रहता है। एक तो पहला रहेगा आपका स्टील और दूसरा रहेगा कंक्रीट का। Why this? Yes, why this so? It is made up by the what? Steel and concrete. प्रेशर ऑफ वाटर इज वेरी हाई सर। Pressure of water is very high. Then and corrosion ना हो इसलिए. okay. Then सर फ्रिक्शन की वजह से हम लूज कर सकते हैं yeah, उसको। yeah. Yes. That is the main reason. Yes. Why the steel? Because generally अगर हम कंक्रीट का पाइप यूज करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, इज इट? यस। Yes. Yes, sir. जी सर। यस सर। हाँ, so due to that high friction we can lose more energy, is it? Yes, sir. बरोबर है का? यस सर। So Yes, due sir. to, yeah, so we are losing the more energy. So to avoid of that, we are using the steel pipes inside, and after that we are using the concrete. Why concretes? लेस फ्रिक्शन। Not to get junk rust.
Not to get junk. Okay, then another one. Next, it is correct. Then For the next is support. for the support. Okay, good. Then For spring. next for प्रेशर As it is absorb करते hard, the Spring. penetrating effect of water should be less. okay, good. Let's see. These are some basic reasons. First one is the what? It provides the strength to the stainless steel pipes. Okay. Then second one, it provides the safety. Okay. Safety भी provide करेगा ना ये? Is it? यस सर हाँ. Yes, So that is the main reason behind. Yeah. So concrete pipe जो है basically दो चीज मतलब reason से यूज किए जाते हैं. ये तो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और स्ट्रेंथ भी देंगे. मानो कि अगर अंदर का स्टील पाइप आपका करोड़ भी हो गया फिर जंग भी हो गया तो वाटर कंक्रीट पाइप से बाहर नहीं आ सकता. Is it? So that's why this penstock is generally made up by the steel and the concrete. Okay, I think this clear to you now. Okay. Yes, sir. yes, sir. Yeah. Now next is the Yes, sir. inlet wall. Yeah. Now next one is the inlet wall. Now what is the function of this inlet wall? Yes, inlet wall. इसका फंक्शन इसके नाम से ही पता चलेगा. Inlet valve. उसमें से पानी जाता है. To stop the water. Yes, it just simply control the flow of water. Is it? Yes. Just simply control. Yes, it's just simply control the flow of water. The next hydraulic turbines is the prime movers. Now let's see. Basically, these hydraulic turbines are two types. जो हाइड्रोलिक टर्बाइंस रहते हैं ना ये बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं. एक रहता है आपका इम्पल्स वाटर टर्बाइन. इम्पल्स वाटर टर्बाइन एंड सेकंड वन इज द रिएक्शन वाटर टर्बाइन. बेसिकली हाइड्रोलिक टर्बाइंस क्या रहते हैं आपके दो टाइप्स के रहते हैं. इम्पल्स वाटर टर्बाइन एंड रिएक्शन वाटर टर्बाइन. अभी इम्पल्स वाटर टर्बाइन में हम क्या करते हैं उस टर्बाइन में ज्यादा से ज्यादा हम काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं. इम्पल्स टर्बाइन में हम ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं. एंड इन reaction turbine we use pressure energy as well as kinetic energy. रिएक्शन टर्बाइन में प्रेशर एनर्जी भी हम यूज करेंगे एंड आपकी काइनेटिक एनर्जी भी यूज करेंगे. एंड इंपल्स टर्बाइन जो होते हैं इंपल्स टर्बाइन में सिर्फ हम क्या यूज करते हैं ओनली काइनेटिक एनर्जी. ओके. सो ये आपको मैं आगे बता देता हूँ जो कुछ है. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हमने पहले एक सेक्शन में बोला था कि यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब है. ये देखिए मैंने आपको बोला था हियर वी हैव द ड्राफ्ट ट्यूब सेक्शन. मैंने आपको बोला था कि बाद में बताता हूँ आपको ड्राफ्ट ट्यूब सेक्शन क्यों यूज करते हैं या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ड्राफ्ट ट्यूब. इज इट? ये ड्राफ्ट ट्यूब है. So let's see. Generally, this draft tube we are using in reaction water turbine. ये generally जो draft tube है, ये कहाँ पे use करते हैं हम? Reaction water turbines में. Reaction water turbines में क्यों? तो मैंने आपको पहले बोला था, ये जो है इस टर्बाइन के दो टाइप रहेंगे. एक जो है आपका impulse. पहला रहेगा आपका impulse water turbine. So impulse water turbine में हम generally क्या use करते हैं? Only we are using what? Kinetic energy of the water. एंड जो रिएक्शन रहते हैं आपके एक्चुअली आज मेरे पास पेन टैब नहीं है. वी आर स्टार्टेड विद वर्क फ्रॉम होम सो दैट्स व्हाई दिस हैंडराइटिंग लाइक दिस वन. सो आई एम हियर ड्राइंग दिस विद द हेल्प ऑफ माउस. ये मैं माउस के यूज करके ड्रॉ कर रहा हूँ. सो मे बी थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो सकती है. सो रिएक्शन में क्या है आपका दोनों भी यूज करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी as well as what potential it's not potential, Pressure it is energy. pressure energy. Pressure. Okay, impulse में हम दोनों भी यूज करते हैं काइनेटिक रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. सो टू क्रिएट दिस प्रेशर एनर्जी वी आर यूजिंग व्हाट ड्राफ्ट ट्यूब. ये प्रेशर एनर्जी यूज करने के लिए हम क्या करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं. ड्राफ्ट ट्यूब ज्यादा कुछ नहीं है सिर्फ टरबाइन को ऐसा एक्सटेंड किया हुआ एक नीचे पोर्शन रहेगा जिसका एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा. यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका एरिया कम है, यहाँ पे एरिया थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे एरिया थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है,
यहाँ पे एरिया ज्यादा बढ़ गया है। सो दैट इज नथिंग बट सिंपली द ड्राफ्ट ट्यूब। इट इज द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया ट्यूब, इसको हम ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। और व्हाई द ड्राफ्ट ट्यूब यूज्ड टू इंक्रीज द pressure, and these are generally using only in this draft tube. We are using only in reaction turbine only. We are not using it in the impulse turbine. impulse turbine में क्या होता है कि मान लीजिएगा आपका जो पाइप है, हाउस होल्ड में जो आप पाइप यूज करते हैं, उस पाइप से जो वाटर आता है वो वाटर आप डायरेक्टली क्या करते हो, टर्बाइन के ब्लेड्स पे डालते स्ट्राइक करते हो, और वो वाटर ऐसे ही आपका जो है जमीन पे लूज हो जाएगा, मतलब उसका हम कोई यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि अगर वाटर में जो सॉरी टरबाइन में जो वाटर आता है रिएक्शन टरबाइंस में क्या होता है कि टरबाइंस में जो वाटर आता है वो आपके ब्लेड्स पे तो स्ट्राइक करता ही है, लेकिन जब वो वाटर बाहर निकलता है, कहाँ से, टरबाइन से जब बाहर निकलता है, तो वो जो वाटर है वो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्रिएट करता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। सो ड्यू टू दैट वी आर यूटिलाइजिंग द हेड, हम वो प्रेशर हेड भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस हेड वी कैन आल्सो यूटिलाइज टू जनरेट द एनर्जी। ओके, अब ये हेड कैसे यूज करते हैं, इसके लिए आपको पूरा टर्बो मशीन, थर्ड ईयर में मैकेनिकल में सब्जेक्ट टर्बो मशीन, वो पढ़ना पड़ेगा। सो जस्ट सिर्फ ये याद रखिएगा कि ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से हम क्या करते हैं, हेड जो है वो हेड राइज होता है ड्यू टू द प्रेशर एनर्जी, एंड वो हेड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वाटर सॉरी आउटपुट एनर्जी बढ़ाने के लिए। Okay, so that is the main function of draft tube. Okay, समझ में आया draft tube का function? Yes, sir. Yes. Okay. Now draft tube okay मैंने आपको बता दिया। Now let's see, मैंने आपको पहले बता दिया कि दो टाइप्स के टरबाइन है, एक है आपके इम्पल्स टरबाइन और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। सो इम्पल्स टरबाइन जो है इसका ये एग्जांपल है पेल्टन व्हील टरबाइन, ये रहेगा आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल पेल्टन व्हील टरबाइन है। सो अगर आप देखेंगे तो लेट्स सी, दिस इज द शाफ्ट, ये क्या है आपका शाफ्ट है, ये रहेगा आपका शाफ्ट। नाउ दीज आर द बेरिंग्स, ये जो है ये क्या है आपके बेरिंग्स है। बेरिंग का यूज क्यों होता है, यस रोटेट होने के लिए। बेरिंग, यस इट सिंपली अलाउज द रोटरी मोशन अलाउ करने के लिए बेरिंग यूज करते हैं हम, इज इट। नाउ लेट्स सी, दिस इज द व्हील, ये जो है ये व्हील मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। लेट्स सी दिस वन, दिस इज द व्हील, ये रहेगा आपका व्हील। सो हियर दिस इज द व्हील एंड ऑन दैट व्हील वी आर जस्ट माउंटेड दिस ब्लेड्स, ये जो है ये आपके क्या है ब्लेड्स हैं। अगर आप ब्लेड्स को देखेंगे ना डिटैच करके तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ये ब्लेड्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये पीछे से ऐसे है और सामने से ऐसे रहेंगे। ओके, सो दिस इज द स्प्लिटर, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटर। यस, स्प्लिटर इसका मतलब क्या, यस बता सकते हैं इसका मतलब क्या है स्प्लिटर का? वाटर को डिवाइड करेगा। Split Yes, water. simply, yes, it just simply split the water. ये water को क्या करेगा, ऐसे split करेगा, half water will get split at this portion and half water will get split into in this portion. और यहाँ पे आपको जो portion दिख रहा है this one, this is called as the undercut. इसको हम क्या बोलते हैं, undercut. अभी इसका यूज क्या है मैं आपको बाद में बोलता हूँ, just keep remember this is called as the undercut. Okay, समझ में आया? दिस इज द पेल्टन व्हील टरबाइंस। सो जो वाटर है ये वाटर इस स्प्लिटर पे क्या होता है आपका स्ट्राइक होता है। सो इस स्प्लिटर पे स्ट्राइक होने की वजह से ये जो वाटर है वाटर क्या करेगा, इस बकेट्स को आगे पुश करेगा। सो पुश करने की वजह से ये जो वाटर, ये जो व्हील है, ये व्हील आपका इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। जस्ट ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ये ऐसे है, इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन। अभी देखिए ये मैंने आपको बोला था, ये लिख देखिए, दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब। नाउ दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन, दिस इज द जनरेटर, ये आएगा आपका जनरेटर, दिस इज द जनरेटर एंड दिस वन इज व्हाट, फ्रांसिस टरबाइन। अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके दिस इज दैट इज नॉट द ड्राफ्ट ट्यूब आपकी नीचे रहेगी इस साइड, इस पोर्शन में, जिससे आपको यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है ना, सेम वैसे ही वहां पे आपको ऐसी ड्राफ्ट ट्यूब दिखेगी। ये आपका इनलेट वाटर का फ्लो है,
अभी देखिए फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होगा कि जो वाटर है वाटर यहाँ से पास हो जाएगा, ये वाटर क्या होगा यहाँ से पास हो जाएगा, और जब ये पास होता है तो दिस फ्रांसिस टर्बाइन इज ऑफ इनवॉल्यूट सेक्शन, ये जो है ये इनवॉल्यूट सेक्शन है। इनवॉल्यूट सेक्शन मींस व्हाट? स्पाइरल इनवॉल्यूट सेक्शन मींस व्हाट? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? मतलब ये ऐसा रोटेटिंग तो है, लेट्स सी, ऐसा रोटेटिंग तो है ही, बट जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे, यहाँ का एरिया बड़ा है, जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाते हो वैसे वैसे ये जो एरिया है ये एरिया क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है। इज इट? हो जाता है। यस Yes. Yes, sir. आया समझ में? सर, यस सर। दिस इज स्पाइरल इनवॉल्यूट। सो वाटर यहाँ से फ्लो होता जाएगा, जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। इज इट? Yes, sir. यस इसका सर। प्रेशर क्या होता Yes, जाएगा, sir. बढ़ता जाएगा। Yes. सो दैट इज, एंड आफ्टर वॉल जो वाटर हैविंग ब्लेड्स के ऊपर क्या होता जाएगा, ऐसे स्ट्राइक होगा, इन ब्लेड्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और इस साइड से वाटर वो बाहर आएगा। सो दैट इज द फ्रांसिस टर्बाइन। देन ये रहेगा आपका कपलन टर्बाइन। अगेन दिस इज रिएक्शन टर्बाइन। ये जो है ये आपका फ्रांसिस टर्बाइन, ये भी रिएक्शन टर्बाइन है। कपलन टर्बाइन ये भी आपका रिएक्शन टर्बाइन ही है। यहाँ से वाटर अंदर जाएगा, इनवॉल्यूट केसिंग, दिस इज कॉल्ड एज द इनवॉल्यूट केसिंग। ये देखिए आप, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे इसका क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है। यू कैन सी हियर, लेट्स सी, दिस इज द वेरी क्रॉस सेक्शन। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जूम करके भी देख सकते हैं आप, यू कैन जूम योर पिक्चर आल्सो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन सबसे कम है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया मींस डायमीटर, डायमीटर ऑफ द पाइप इज वेरी more at the entry level and it is very less at the exit level। ये जो exit level रहेगी, यहाँ पे आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सबसे कम रहेगा। इज इट? Yes, Yes, sir. sir. नाउ लेट्स सी। देखिए अभी क्या होता है कि जब वाटर लेट्स सी, जब वाटर आपका इन पाइप से पास होता है, जब वाटर इन पाइप से पास होगा तो वो इस पाइप में अंदर जाता जाएगा, और जैसे जैसे अंदर अंदर वाटर जाएगा वैसे वैसे उस वाटर का प्रेशर क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। इज इट? Yes, sir. Yes, प्रेशर sir. कैसे बढ़ेगा? Yes, sir. बिकॉज द प्रेशर, फॉर्मूला क्या है प्रेशर का आपका? F upon A. इट इज फोर्स अपॉन Force upon A. एरिया। सो क्रॉस सेक्शन एरिया। सो एरिया जब कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। हाँ, ज्यादा रहेगा। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। सो Yes, sir. जैसे जैसे वाटर अंदर 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 जाएगा इस पाइप से, ये यहाँ से फ्लो होगा अंदर से, सो जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिएक्शन टरबाइन जो है, रिएक्शन टरबाइंस, इन रिएक्शन टरबाइन वी आर यूजिंग व्हाट, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज pressure energy also। Is it? Yes, sir. Yes, sir. So here the pressure of water is goes on increasing। now ये जो water है, ये water यहाँ पे आपको एक guide blades दिखाई देंगे। let's see, this is called as the guide veins। so these are the different guide veins। ये guide veins है, इन guide veins से क्या होता है, water अंदर flow होता है। okay। I will show you here। let's see, these are the guide veins। ये जब देखेंगे आप, सो दीज आर द गाइड वेंस। यहाँ पे गैप रहता है, इन गाइड वेंस के बीच में क्या रहता है, आपका गैप रहता है। सो जो वाटर आता है आपका, ये वाटर क्या होता है, इन गाइड वेंस में से अंदर पास होता है। सो दीज आर द गाइड वेंस विच आर गाइडेड द वाटर। वाटर को डायरेक्शन देने के लिए गाइड वेंस क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। सो ये जो गाइड वेंस है ये क्या करता है, वाटर को डायरेक्शन देता है, और वाटर ऐसे आके नीचे आएगा, ऐसे आके ये नीचे आएगा। और ये जो ब्लेड्स देखेंगे आपको टर्बाइन के, दीज आर द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन। ये देखिए ये टर्बाइन के ब्लेड से, ओके। ये वाटर क्या होगा, इस ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक होगा, ये वाटर
जो है ये ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक होगा। अब मुझे आप ये बताइएगा कि मैं यहाँ पे दो डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ टरबाइन के शाफ्ट रोटेशन की, दो डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें से करेक्ट डायरेक्शन कौन सी है ये मुझे बताइए। जब वाटर ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक होगा तो ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। इसको मैं इरेज करता हूँ। आपको ब्लेड के क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं? Yes, sir. Let's see. So these are the blades. ये blades हैं। वाटर ऐसे आएगा और इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक होगा। So just tell me the which one is the correct direction of rotation. मान लीजिएगा कि ये आपका शाफ्ट है। This is the shaft. This is the first direction रोटेशन की और ये रहेगी आपकी दूसरी डायरेक्शन रोटेशन की। अभी मुझे बताइएगा कि जो आपका वाटर शाफ्ट रहेगा, ये शाफ्ट, इसकी डायरेक्शन आइदर ऐसी रहेगी या फिर ऐसी रहेगी। विच वन इज द करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? First one. First one. Second one. Second. फर्स्ट वन जो है And when, sir? एंटी ये रहेगी आपकी क्लॉकवाइज Clockwise. और ये रहेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। विच वन इज द करेक्ट? Anti-clockwise. 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 Clockwise. दिस वन इज द करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज जब वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक होगा तो ये ब्लेड्स को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में पुश करेगा। इज इट? Yes. sir. Yes, sir. अगर आपने क्रॉस सेक्शन देखा तो क्रॉस सेक्शन देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जब वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक होगा तो वाटर ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक होगा और यहाँ से नीचे आएगा। सो मतलब ऐसे वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक होगा और यहाँ से नीचे आएगा, मतलब इस ये वेन्स को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में पुश करेगा। सो जब ये वेन्स इस डायरेक्शन में पुश होंगी तो ये जो शाफ्ट है ये आपका इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। मींस दिस वन इज द करेक्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ जो वाटर है वो वाटर इस ट्यूब से क्या आएगा, अभी बाहर आएगा। अभी ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। इसको मैं क्या बोलूंगा, ड्राफ्ट ट्यूब। नाउ लेट्स सी, दिस ड्राफ्ट ट्यूब वी आर जनरली यूजिंग ओनली इन व्हाट, कपलान टरबाइन एंड इन फ्रांसिस टरबाइन ओनली। रिएक्शन टरबाइन जो इसमें यूज करते हैं। जो पेल्टन टरबाइन है यहाँ पे हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए वाटर जो है, वाटर यहाँ पे स्ट्राइक होगा, वाटर क्या होगा, यहाँ से ऊपर जनरली स्ट्राइक होगा। सो स्ट्राइक होने के बाद ये जो है ये क्या करेगा, आपका इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। ओके, इस डायरेक्शन में ये रोटेट होगा और जो वाटर आएगा वो इसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही रिलीज कर देंगे टेल रेस में। वाटर ऐसे ही रिलीज कर देंगे हम टेल रेस में। सो उसका कोई संबंध ही नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। सो पेल्टन टरबाइन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे पेल्टन टरबाइन में हम क्या करते हैं, नोजल यूज करते हैं। सो जनरली नोजल इज इंक्रीजिंग ओनली द वेलोसिटी, मींस इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी पेल्टन टरबाइन्स में। जो कपलान एंड आपका रिएक्शन फ्रांसिस रहेगा, इन दोनों में हम नोजल के बजाय क्या यूज करते हैं, इनवॉल्यूट केसिंग। नोजल के बजाय हम क्या यूज करेंगे, इनवॉल्यूट केसिंग। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, And due to that involute casing, we are using kinetic energy as well as pressure energy also. प्रेशर भी बढ़ेगा ना वाटर का, जैसे वाटर अंदर जाता जाएगा वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। किसी को कोई डाउट अभी? No, sir. No, sir. ओके, नाउ ओके, सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रल। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हैं। सर, जो वाटर एनिमल्स रहते हैं उनका क्या, और जो वाटर का जो प्रेशर है वो नीचे सरफेस पे जो रॉक्स पेबल्स रहते हैं उनकी वजह से भी टरबाइन हमारा डैमेज हो सकता है, उनका क्या होगा? ओके, या लेट्स सी। पहले तो आपका जो वाटर हाइड्रो पावर प्लांट रहता है, पहला आपका क्लियर डाउट करता हूं मैं कि आप जो बोलते हैं कि इसमें जो एनिमल्स रहेंगे, सो इस एनिमल्स को
यहाँ पे या फिर कोई भी डेब्रिस क्वांटिटी यहाँ से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम ट्रैश रैक रखते हैं एंट्री पॉइंट्स में। मतलब हम सिंपली इसको हम फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैश रैक। सर मगर उससे हमारा ही नुकसान होगा ना, प्रेशर कम हो जाएगा। उस इस ट्रैश रैक की वजह से नहीं, हाँ प्रेशर तो आपका कम होने वाला है। यस, प्रेशर तो कम होने ही वाला है ना यहाँ पे। अगर आपके डेब्रिस या फिर कोई एनिमल्स इस पाइप के थ्रू अंदर चले गए तो वैसे भी आपको यहाँ पे कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है। तो इससे तो बेहतर है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो। इज इट? यस सर। सो ये आपका पहला डाउट क्लियर। ओके, दिस इज क्लियर, पहला डाउट। यस सर। ओके, नाउ जस्ट कम टू योर सेकंड डाउट। आप बोल रहे हो कि जब वाटर यहाँ से बाहर आता है तो इसका प्रेशर ज्यादा रहता है। सो प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से आगे जो आपके ये रहेंगे रॉक्स, उसके ऊपर ये हैमरिंग होने की वजह से जो रॉक जो है वो क्रैक जा सकते हैं। इज इट? यही ना? नहीं सर, वहां पर नहीं, ये ट्रैश रैक के पास ही प्रेशर, पानी जो अंदर जा रहा है ना, उसके साथ भी रॉक्स पेबल जा सकते हैं ना अंदर। नहीं, वही तो बोला ना, ट्रैश रैक पे ही हम इसको रोक लेते हैं ना। एक्चुअली ट्रैश रैक जो रहता है ना, वो एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट पे नहीं रहता है, वो थोड़ा सा आपका दूर रहता है, ताकि वहां से ही सब क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए और यहाँ पे आपको साफ वाटर मिल जाए। और उस ट्रैक रैक में जो भी कुछ आपके डेब्रिस या फिर कुछ रहेंगे वो हम फिर बाद में पाइप के थ्रू निकाल लेते हैं। यहाँ पे पाइप रहेगा, वहां से वो क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं। फर्स्टली वी आर अलाउिंग इट टू स्टोर हियर एंड वी आर जस्ट accumulating that one in another pipe. Is it? ओके सर। ओके सर। जी सर। हाँ, सो और किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, और दूसरी बात दूसरी बात ये मतलब एक जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो डैम के पीछे जो भी कुछ आपका वाटर एरिया रहता है, जिसको हम बैक वाटर ऑफ द डैम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कैचमेंट एरिया बोलते हैं। इन इंग्लिश वी आर कॉलिंग दिस वन एज द कैचमेंट एरिया एंड इन मराठी वी आर कॉलिंग इट एज द ओलिता खालची जमीन। याला आपण ओलिता खालची जमीन म्हणतो। ओके, जस्ट ऑल द एरिया बिहाइंड द डैम, डैम के पीछे यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो भी आपका एरिया कम्स अंडर द वाटर, वहां पे जो वाटर जो स्टोर रहता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट? हाँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज व्हाट? इट्स इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। इज इट? इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा रहेगी। देन they are located Yes. at far away from the load centers. Okay, let's see. These are generally located far away the load center. Load center means what? Away from the load center means what? मतलब जहां आप मतलब जहां पे आपको जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत है वहां से ये बहुत ही दूर रहे। इज इट? सो हियर द ट्रांसपोर्टेशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइंस हम बोलते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस में लूज द इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लॉसेस आपके में भी ज्यादा रह सकते हैं। इज इट? समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देन नेक्स्ट इज व्हाट? ड्यूरिंग द ड्रॉट सीजन, म्हणजे आपण काय म्हणतो ड्रॉट सीजन म्हणजे समर सीजन। इज इट? जब पानी नहीं रहेगा, ड्राई सीजन, तो उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ओके, और कभी कभार तो कुछ प्लांट्स हमें बंद भी करने पड़ते हैं ड्यू टू द इनसफिशिएंट वाटर कम होने की वजह से। देन वाटर रिजर्वायर इज लॉस्ट बाय द इवापोरेशन, जो वाटर आप रिजर्व करते हैं पीछे वो इवापोरेशन की वजह से क्या हो जाता है? लॉस भी हो सकता है। एक्चुअली दैट इज वेरी लेस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, इतना इवापोरेशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है इसके? तो पहले तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इससे आपका पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता है। ओके, देन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन चार्जेस आर वेरी लेस, इसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन जो चार्ज है या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम है, इसका ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट डज नॉट चेंज विद द एज। मतलब अगर आपका प्लांट 80 साल का हो गया है, मतलब मैंने 80 साल पहले प्लांट इंस्टॉल किया है, 50 साल पहले प्लांट इंस्टॉल किया है, तो उसकी वजह से 80 साल पहले वो क्या करता था? लेट्स सपोज 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। अभी 80 साल हो गया है
तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ 60,000 मेगावाट ही 1600 मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। सो दैट गैप इज नॉट दैट मच। अगर पहले 1000 करता था तो अभी कितना कर सकता है, मे बी आपका 980, 950 like this. Okay, but that is very negligible. So next, what in addition to power generation, hydroelectric power plants are also useful for fluid control. Okay, what it means? What it means? Yes, आपके जो बाढ़ वगैरह आती है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डैम्स का यूज कर सकते हैं। डैम्स में हम वाटर स्टोर कर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जो बाढ़ आने वाली है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन इरिगेशन पर्पजेस, व्हाट दिस वन, इरिगेशन पर्पजेस? Water this for just daily yeah, for industrial use or for agricultural use. Okay, that is irrigation. Then fishery and recreations. Okay, fishery के लिए भी हम यूज करते हैं। डैम में आपने देखे होंगे फिश भी रहते हैं। सो दीज आर द सम व्हाट, किसी वहां के जो आपके लोकल लोग रहते हैं उनके लिए ये क्या होता है, एक बिजनेस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं वो लोग। इज इट? देन हैव अ लॉन्गर लाइफ, एक्चुअली इसकी लाइफ जो है वो लाइफ ज्यादा रहती है। Okay, then what water stored in the hydroelectric power plant can also be used for the domestic water supply, मैंने आपको ये बता दिया। Then since hydroelectric power plant runs at a low speed, okay, 300 to 400 RPMs, there are no requirement of the special alloy steel construction. Different alloy steel के equipments की जरूरत नहीं पड़ती है। Okay, so hydroelectric power plant, now let's see here. Okay, how the hydroelectric power plant works, यहाँ पे आप देख सकते हैं। I think this power plant is clear to you. कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अभी आपको पता हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और दूसरी बात ये कि जो असाइनमेंट्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड किए हैं ना, वो असाइनमेंट्स आपको 10 फरवरी तक रिवर्ट बैक करनी है। अभी उस असाइनमेंट्स में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, आपको चेक करना है कि वो क्वेश्चन उसमें है या नहीं असाइनमेंट में। अगर रहेगा तो आपको वो राइट डाउन करना है और आपके पास रखना है, नोटबुक में आपको लिखना है सब। फिर बाद में आपको उन सबके क्या करने हैं, आपको फोटोज निकाल के एक पीडीएफ फाइल बनानी है और वो पीडीएफ फाइल आपको क्या करनी है, सबमिशन में अप्लाई करनी है। ओके, टीम में सबमिशन पे आएगी वो। सो देयर आर द वाटर डैम्स। ये पीछे जो है वो डैम्स है, ये देखिए यहाँ पे आपके डैम्स हैं। Okay, we are not that much interested in history. Just move towards the actual working. This is the water level. Okay, these are the penstock. And this is the turbine. Now water reservoir here, the kinetic potential energy is water is very high. Here. Now this is the penstock. Penstock के through water जो है वो यहाँ पे आता है। Now just strike on the plates. ये दो टाइप के, स्टील एंड कंक्रीट। मैंने आपको बता दिया स्टील और कंक्रीट का क्यों यूज करते हैं। दिस इज द सर्ज टैंक, ये भी बताया मैंने आपको, सर्ज टैंक यूज करते हैं तो अवॉइड द वाटर हैमरिंग इफेक्ट। ये देखिए ट्रैश रैक, प्रिवेंट द डेब्रिस क्वांटिटीज एक्सेट्रा। Now this turbine is coupled to the generator. यहाँ पे generator आपको दिखाई देगा। So generator will get rotate and it will produce the electricity. And that will electricity we are passing through these transmission lines. This is so simple working of the hydroelectric power plant. This is the draft tube. This draft tube we are generally using in what? Reaction turbines. Okay, so these things we are covered. Now Pelton turbine. Okay, let's see the Pelton turbine. ये impulse turbine है। Pelton turbine क्या है? Impulse turbine है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर से हम वाटर स्ट्राइक करते हैं उसी प्रेशर से हम उसको रिलीज भी करते हैं। We are releasing the water in the atmospheric pressure. Let's see here generally.
आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपके नोजल, दिस इज द नोजल। Okay, so this one is the nozzle. देखिए जो वाटर है आपका, वो वाटर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, इसमें बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी, नोजल के थ्रू इस ब्लेड्स पे स्ट्राइक हो रहा है और वैसे ही वाटर हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, दिस इज द ब्रेकिंग जेट। अगर इसको हमको स्टॉप करना पड़ेगा तो यहाँ पे ये ब्रेकिंग जेट है। सो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगी, जो वाटर है वो वाटर को स्ट्राइक करना शुरू कर देगी अपोजिट डायरेक्शन में। सो आपकी जो रोटेटिंग व्हील्स है वो रोटेट होना स्टॉप कर देंगे। पहले तो नोजल बंद कर देंगे। यहाँ देखिए हम यहाँ से फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं। हियर यू कैन चेक, हियर वी आर कंट्रोलिंग द फ्लो। अभी मैंने आपको पहले भी बोला था कि अंडरकट जो है वो अंडरकट आप ध्यान में रखिएगा कि अंडरकट वहां पे है। अभी मैं बताता हूँ कि वो अंडरकट क्यों यूज किया गया है। याद है सभी को अंडरकट? मैंने बताया था ना आपको अंडरकट। Yes, sir. यस सर। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द अंडरकट। अभी देखिए कि वो अंडरकट का यूज क्या होता है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाटर जेट जो है, ये जेट अगर इस ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा हूँ, अगर इस ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा हूँ दिस वन, तो अगर यहाँ पे अंडरकट नहीं रहेगा तो इट विल डिस्टर्ब द फ्लो। इज इट? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, यस sir. मान लीजिएगा कि मैं इस बकेट पे वाटर अभी क्या कर रहा हूँ, स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो अगर इस ब्लेड पे अंडरकट नहीं रहेगा तो वो अंडरकट क्या करेगा, अगर नहीं रहता है तो ये ब्लेड क्या करेगा, ये वाटर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा इसके ऊपर स्ट्राइक होने के लिए। सो जैसे ये आगे आगे मूव हो जाएगा ये ब्लेड, ये जो ब्लेड, तो ये नीचे आएगा ना। सो दैट अंडरकट विल अलाउस मी द स्ट्राइकिंग ऑफ जेट फुल्ली ऑन द डिजायर्ड ब्लेड्स, इसलिए अंडरकट दिया है। पता चला अभी अंडरकट क्यों दिया गया है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आज सर रिपीट कीजिए ना अंडरकट। ये देखिए ये अंडरकट क्या है, दिस इज इन दिस सेक्शन यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज अंडरकट, बरोबर है? इसको हम अंडरकट कहते हैं। अभी देखिएगा लेट्स सी हियर, अगर मैं इस ब्लेड्स पे, इस बकेट्स पे, अगर इस बकेट पे वाटर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा हूं, इस बकेट पे, तो जब इस बकेट पे मैं वाटर स्ट्राइक करूंगा तो इसके पीछे ये बकेट आएगी, ये आगे पास होगी और इसके पीछे ये बकेट आएगी। अगर इस बकेट को अंडरकट नहीं रहेगा, ये प्लेन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जब मैं वाटर इस बकेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा हूं, इस बकेट के ऊपर, तो ड्यू टू द अनअंडरकट, अगर अंडरकट नहीं रहेगा तो क्या करेगा, उस जेट को ये बकेट डिस्टर्ब कर देगा। सो दैट वाटर विल नॉट गेट फुल्ली स्ट्राइक ऑन दिस बकेट। ये इस वाटर जो है इस बकेट के ऊपर, इस बकेट के ऊपर ये जो वाटर जेट है वो फुल्ली स्ट्राइक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अंडरकट नहीं है, यहाँ पे गैप है। इसकी वजह से ये जेट क्या हो रही है, इस बकेट के ऊपर इजीली स्ट्राइक हो रही है। इज इट? आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके, सो दिस इज द पेल्टन व्हील टरबाइन। यहाँ से ये जो है ये ब्रेकिंग जेट है, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम ब्रेकिंग जेट बोलते हैं। अगर हम वाटर देखिए, वाटर में आगे से पास करूंगा, ऊपर से पास करूंगा तो ये स्टॉप हो गया। यहाँ से नीचे से बंद कर दूंगा और ऊपर से स्टार्ट कर दूंगा। ओके, so this is the Pelton wheel turbine. Now I think this is clear to you. आया सभी को समझ में? यस सर। Yes, sir. Okay, so I will just download the attendance. Then we will stop the meeting. Yes, sir. ओके, असाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर असाइनमेंट में अगर वहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। जैसे लेक्चर होता है, जैसे जैसे लेक्चर होता है, आपको देखना है कि उस असाइनमेंट्स में वो क्वेश्चन है या नहीं। रहेंगे तो उसी दिन वो लेक्चर्स में वो असाइनमेंट में पेजेस पे लेके लिख लीजिएगा, और वो जो असाइनमेंट है उसका सिंपल फाइनल एक पीडीएफ बना के वापस मुझे वहाँ पे रिप्लाई कर दीजिएगा, मतलब वो सबमिट कर दीजिएगा। टीम पे ही आपको वहाँ पे सबमिशन का बटन आ जाएगा।
आप उस असाइनमेंट के ऊपर जब क्लिक करोगे ना तो वहां पे आपको आएगा सबमिट बोल के, तो दैट एट दैट टाइम यू कैन सबमिट दैट असाइनमेंट। ओके सर। तो सर अगर किसी आपने को वो असाइनमेंट्स रोल नंबर वाइज दिए हैं तो वो पूरे मतलब 1 to 5 दिए हैं तो पूरे 5 करने हैं क्या? यस 5 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे वहां पे, जिस रोल नंबर को जो क्वेश्चंस दिए हैं वही क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने हैं। ओके सर रोल आप नंबर फेसबुक हाँ सर, सर मैं आप आई कैन फेसबुक डू। के पीडीएफ सेंड कर सकते हो? किसके? टेक्स्ट बुक रेफरेंस टेक्स्ट बुक बुक टेक्स्ट बुक्स की जरूरत नहीं है, नहीं टेक्स्ट बुक्स की मैंने पहले बोला आपको जरूरत नहीं है। जो वेबसाइट पे नोट्स है ना वो नोट्स से सफिशिएंट है। अगर बाकी किसी यूनिट्स के नोट नहीं है ना तो मैं देखता हूँ, अगर वहाँ पे नोट्स नहीं है तो एक्चुअली कुछ तो इसका प्रॉब्लम हो गया होगा। लेकिन सभी फैकल्टीज के पास उनके उनके यूनिट्स के नोट है तो मैं उनको वापस से अपलोड करने के लिए बोलता हूँ वहाँ पे। सर मेरे को नहीं पता है रोल नंबर 50 को कैसे करना है। रोल नंबर्स जो नए हैं वो आपको, ठीक है, वो शीट में आपको देता हूँ। वहाँ पे आपके सभी को रोल नंबर्स नए मिल जाएंगे। जिनके 42 तक नंबर थे वो तो वैसे ही है, लेकिन 43 से जो पे नीचे थे, मतलब जिसका 44 था उसका 43 हो गया है, 45 वाले का 44, एक से सिर्फ ऊपर गया है नंबर। 44 2 तक सेम मेरा वही है, कोई 50 चेंज नहीं है। हो गया, हाँ 50 हुआ है सर 50। हाँ, अगर आपका पहले 51 होगा तो अभी 50 हो गया होगा, पहले आपका 52 हाँ था सर। तो आप 51 है, ऐसा है। सो फिर कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं सर असाइनमेंट में? न्यू न्यू रोल नंबर्स अभी जो असाइन किए हैं वो। नहीं, ओके सर ठीक है। हम्म। सर वो एक ही करना है क्या, जो रोल नंबर 50 है वो क्वेश्चन नंबर 50 है वो एक ही करना है या? नहीं, आपको देखने हैं ना, ऊपर रहेंगे ना आपके सब नंबर यू कैन चेक। हर एक को 5 क्वेश्चंस है, वहां पे आप देखिए नंबर अलॉटेड जो किए गए हैं। ओके ओके पहले सर ठीक पहले पूरी पूरी की पूरी पहले असाइनमेंट आप देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगर हेलो उसके सर, बाद कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए। हेलो सर, हम्म हम्म क्या आप सर अभी हमें उस पॉइंट्स कितने लिखने वेबसाइट हैं? पे जाके हमें नोट्स का अभी दिखा सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है वो? नोट्स तो दिखाया था ना मैंने आपको, वेबसाइट पे जाके देखना है ना। आई विल शेयर द वीडियो फॉर दैट वन। ओके सर सर। हमें पॉइंट्स कितने लिखने हैं आंसर में? जो आंसर रहेगा वो लिखना पड़ेगा ना आपको। नोटबुक बनाना है सर असाइनमेंट का दूसरा। नोटबुक बनाया तो भी चलेगा, या फिर A4 पेजेस आपने बाहर से ले लिए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। सर अगर नोटबुक बनाना तो 100 पेजेस का चलेगा? चलेगा। सर असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? 10 फरवरी तक। आपकी जो असाइनमेंट 1 है उसमें 2 यूनिट्स कवर किए गए, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट्स। सो जैसे जैसे यूनिट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं वैसे वैसे आपको वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है और फाइनली सबमिट करनी है। 10 फरवरी तक असाइनमेंट सबमिट करनी है। हर एक क्वेश्चन सबमिट नहीं करना है रोज। पूरी की पूरी असाइनमेंट हो जाने दीजिएगा। जब पूरी की पूरी असाइनमेंट हो जाएगी तभी आपको सबमिट करना है। नहीं तो आज हाँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हो गया, कल न्यूक्लियर का हो गया था, तो जिसको वो पावर प्लांट का था उन लोगों ने वो लिख लिया और फिर बाद में आपने क्या कर लिया, उसका फोटो निकाल के फिर अपलोड कर दिया। और फिर जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सेकंड यूनिट का तो फिर सेकंड यूनिट का लिख लिया फिर अपलोड कर लिया। ऐसा बिल्कुल मत करो। पहला और दूसरा यूनिट पूरा का पूरा हो जाने दो, मतलब जैसे जैसे होता है वैसे वैसे लिखते जाओ। लेकिन जब दो पूरे के पूरे 2 यूनिट्स कंप्लीट होंगे, जब पूरी असाइनमेंट्स आपकी कंप्लीट होगी तभी ही एक ही असाइनमेंट वही पूरे के पूरे सब पेजेस आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट करने हैं। रोज हर एक पेज मत सबमिट करो। ओके ओके सर। ओके ठीक आहे. दुसरं शिकवलेलं तुम्हाला समजते सगळ्यांना? यस सर। हो सर. Yes, sir. यस सर। ओके यस सर। ओके सर चलो. असाइनमेंट्स मध्ये प्लान्स आहे त्यांचे चित्र बनवायचे आहे का? असाइनमेंट्स मध्ये जे चित्र आहे ते 3D मध्ये असतील तर ते 3D मधले नाहीत बनवायचे, 2D मधले टाका. 3D मधले तुम्हाला जमणार नाही ते. 2D मधले जे आपले स्केमॅटिक स्केचेस असतात छोटे छोटे
ते येस सर. टाकायचे आहेत. ते तुम्हाला अभ्यास 3D जे दिलेले असतात ना ते तुम्हाला समजण्यासाठी दिलेले आहेत त्या नोट्स मध्ये मी. एक्झॅक्टली कसं आहे ते तुम्हाला समजावं म्हणून आहे. 2D पण आहेत ना त्याचे. सर कॅन वी लिव? येस सर. Yeah. Okay, just leave the meeting and join the next lecture.